Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and in our today's video students we are going to discuss about exercise of chapter number 8, that is correspondence with depositors. Alright, so let's start now. So first we will discuss about question number 1 part A. Select the correct answer from the option given below and rewrite the statement. So in that first question is given, depositors are dash of a company. So we all know depositors are the creditors of the company. Okay, so point number 2, depositors provide dash capital to the company. So when you talk about depositors, so company can accept money for a period of minimum period of 6 months and maximum period of 36 months. So 36 months ज़्यादा से ज़्यादा 36 month तक के company can accept money from the public. So that is why it is called a short term capital. Okay, so point number A is the correct answer. Now let's talk about third, that is a company cannot accept deposit for more than dash months. So for more than 36 months अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा. Okay, चलो point number 4, a company can not accept deposit for less than dash months, for less than 6 months. Okay, so A is the correct answer. Now point number 5, deposits are dash loans of the company. So it is a short term loan, अभी हम लोगों ने देखा उसे. Alright, चलो point number 6, public deposit are accepted to meet the requirement of dash capital. So to meet the requirement of working capital. Okay, so B is the correct answer. Point number 7, dash has the power to invite deposit from public. So board of director has the power to invite the deposit from the public. Question number 8, rate of interest on deposit is dash. So rate जो भी rate of interest होगा, if you talk about deposit, if you talk about debenture holders, if you talk about bond holders, so ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा. इंटरेस्ट आपको याद रखना है कि हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का भी नहीं होता है. ओके, चलो आगे देखते हैं. 9, द रिटर्न और इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ऑन डिपॉजिट इज कॉल्ड डैश, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके, जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न को हम बोलते हैं इंटरेस्ट. ओके, दैट मीन्स इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी in debentures, then you will receive interest. If you invest your money in company's public deposit, then also you will receive interest. If you invest your money in bonds, then also you will receive, in return you will receive interest only. Okay, तो ये याद रखना है आपको, because ये आपको फिर ऑब्जेक्टिव्स में आएगा एग्जाम में. Okay, now let's talk about point number B. So group A, group B is given. Now first it is given that depositors, so depositors are the creditors of the company. We know, आंसर भी आपको वहाँ पे लिखा हुआ है. सो ये जो 4 है, 4 इज़ द राइट आंसर. ओके, तो इसका आंसर आएगा 4. नाउ बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वी ऑल नो. ओके, तो हियर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसका आएगा 1. सी दिया हुआ है डिपॉजिट रिसिप्ट. तो डिपॉजिट रिसिप्ट जो होता है वो एक एविडेंस होता है डिपॉजिटर्स के लिए. इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन अ कंपनी, तो उसके बिहाफ में आपको क्या मिलेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट मिलेगा. दैट इज़ नथिंग बट द प्रूफ फॉर यू, एविडेंस फॉर यू. ओके, सो हियर पॉइंट नंबर 5 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 इज़ द करेक्ट आंसर. चलो, नाउ लेट्स सी पार्ट. राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको आंसर सामने सब दिख ही रहा है, तो एक बार उसको हम लोग समझ लेते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिपॉजिट, सो वी ऑल नो इंटरेस्ट ही होगा रिटर्न में. इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, दैट इज इंटरेस्ट वारंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय अ कंपनी. तो एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट. डिपॉजिट रिसिप्ट जो होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट, दैट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. जो भी पैसा डिपॉजिटर्स ने पे किया होगा, कंपनी विल रीपे द अमाउंट. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट. वी ऑल नो 36 मंथ, और मिनिमम क्या होगा, 6 मंथ होगा. तो यहाँ ओके, तो अगर यहाँ पे आपको समझ लो, मान लो कि मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स बोलेगा, तो वहाँ पे आपको 6 मंथ लिखना है. Very simple. C part is done. Now let's talk about D part. First,
State whether the following statements are true or false. First is given, fixed deposit is a short term source of finance for the company. Very true, short term ही है. आगे, fixed deposit holder is creditors of the company. Very true, deposit holders are the creditors of the company. Okay. Now third, deposits are invited by the company without you issuing statutory advertisement. False. Okay, when a company is going to take money from the public, so company को advertisement या फिर circular pass करना पड़ेगा, then only company is allowed to take the money from the public. Okay, that is why this statement is false. Question number 4, fixed deposit holders are entitled to receive dividend. सो फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, यहाँ पे आपको बोला है डिविडेंड, दैट इज वाई इट इज फॉल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक. तो जनरल पब्लिक से प्राइवेट कंपनी कैन टेक मनी प्राइवेटली बट नॉट फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज वाई इट इज ट्रू. ओके, 6 देखते हैं. डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स. तो डिपॉजिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है. ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वन हु enjoy the voting rights. Okay, that is why this statement is false. Now find the odd one. So it is given dividend depositors deposit receipt. तो डिपॉजिटर जो होता है उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलता है, इसके लिए जो ऑड वन है दैट इज डिविडेंड. यहाँ पे आएगा ट्रस्ट डीड, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिट रिसिप्ट. सेम चीज़, डिपॉजिटरी ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट रिसिप्ट. अब ये जो है डिपॉजिट रिसिप्ट जो वो मिलता है डिपॉजिटर्स को, उनका प्रूफ, और ट्रस्ट डीड जो होता है वो भी, ये भी एक तरीके का प्रूफ होता है. ओके, एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं. इसके लिए जो ऑड वन है दैट इज़ बी, डिपॉजिटरी. वेरी सिंपल. चलो, कुछ भी नहीं समझेगा, एनी डाउट यू कैन आस्क मी. आगे बढ़ते हैं. सो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट द सेंटेंस में डायरेक्टली मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है. सो देख लेते हैं इसको भी. डिपॉजिटर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. द डैश मस्ट बी कॉशियस एंड केयरफुल while writing letters to the depositors. So the answer is secretary. Okay, because they are the one who write the letter. Third, deposit is a short term sources of finance of the company. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको लिखना है शॉर्ट टर्म. डिपॉजिट की बात होगी तो वी हैव टू राइट शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4. अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ डैश मंथ्स, दैट इज 6 months. Minimum 6 months or maximum 36 months. Now question number 5. Depositors are entitled to receive interest at fixed rate. तो इंटरेस्ट ही मिलता है. वेरी सिंपल, हमको पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें. बस एक बार आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा. एंड ये सारी चीज़ें आपको पता है. नो, अगर आपने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, और चैप्टर नंबर 2 और बेसिक्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी न्यू लोग हैं जिनको नहीं पता है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, एकदम लास्ट में आपको बेसिक्स के 3 वीडियोस मिलेंगे. वो आपने देख लिया, समझ लिया, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ जाएंगे. ओके, चलो आगे देखते हैं अभी. तो ये आपका जी, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. सो यहाँ पे डायरेक्टली जो बोल्ड में है वो मैंने लिख दिया आंसर आपके लिए. तो डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. रिटर्न ऑन डिपॉजिट क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, नाउ यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट दैट इज़ 36 मंथ लिखो, एंड मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट दैट इज़ 6 मंथ. ओके, वेरी सिंपल. चलो आगे देखते हैं. हाउ आंसर इन 1 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख दिया है. सो फर्स्ट दिया हुआ है दैट इज़ हु इज़ अ डिपॉजिटर. सो उसका आंसर है अ डिपॉजिटर इज़ अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हु गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट रेगुलरली एट फिक्स रेट. वेरी सिंपल. चलो सेकेंड देखते हैं. व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट? तो रिटर्न में क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द रिटर्न ऑन डिपॉजिट फॉर द इन्वेस्टर. थर्ड, व्हाट इज़ इंटरेस्ट वारंट? सो अ चेक गिवन बाय अ कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज कॉल्ड इंटरेस्ट वारंट. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ चेक जो कंपनी देती है उसके डिपॉजिटर्स को पेमेंट करने के लिए. ओके, चलो 4 देखते हैं. व्हाट इज़ रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट? सो रिन्यूअल का मतलब होता है रिन्यू करना. मतलब जो आपने से एग्जांपल 12 महीनों के लिए अपना पैसा डिपॉजिट किया था, 12 महीना ख़त्म हो गया है
या ख़त्म होने वाला है, उसके पहले अगर आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो कंपनी के साथ में, तो आपको आपका डिपॉजिट रिन्यू करना होगा, वेरी सिंपल. सो द डिपॉजिट्स विच इज़ ऑलरेडी ड्यू बट नॉट टू बी रीपेड बट टू बी एक्सेप्टेड अगेन फॉर द फर्दर पीरियड इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स. ओके, वेरी सिंपल. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. विच डॉक्यूमेंट्स इज एनक्लोज्ड अलॉन्ग विद दी, ये द यहाँ पे आएगा, ओके, स्पेस देना यहाँ पे, अलॉन्ग विद द रिन्यूअल लेटर. तो कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा, वो जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ द रिन्यू डिपॉजिट इज एनक्लोज विद द रिन्यूअल लेटर. ओके, तो एक लेटर भी उनको जाएगा साथ में. ऑलराइट, वेरी सिंपल. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. when will the company return the deposit, कब रिटर्न करेगी. सो वेरी सिंपल, द कंपनी विल रिटर्न द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, मतलब जैसे ही पीरियड खत्म हो जाएगा कंपनी विल रीपे द अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट. वी नो मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ. द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 6 मंथ and the maximum period of deposit is 36 month. Alright, चलो अब आता है करेक्ट आई, दैट इज करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ पे आपको जो लाइन में दिया हुआ है ये रॉन्ग है, आपको उसको करेक्ट करना है. ओके, तो डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, सो दे आर नॉट द ओनर, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी. सो ये जो है करेक्ट आंसर है. यहाँ पे क्रिएटर्स आएगा, ये ओनर्स को आपको कट करना पड़ेगा फिर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2. डिपॉजिट्स आर द डैश, डिपॉजिट आर द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो ये इंटरनल नहीं होता है, ये एक्सटर्नल होता है, बिकॉज कंपनी पब्लिक से ले रही है, पब्लिक एक्सटर्नली है, बाहर है, कंपनी के अंदर नहीं है. ओके, सो करेक्ट आंसर है इसका एक्सटर्नल. डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल. सो लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट टर्म है, हमको पता है. ओके, 4 देखते हैं. डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड. नो, डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को और इंटरेस्ट मिलेगा डिपॉजिटर्स को. ओके, सो इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है ABC में, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसिप्ट. सबसे पहले क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद में आपको डिपॉजिट रिसिप्ट मिलेगा, एंड देन उसके बाद में जब पीरियड फिनिश होगा तो रिन्यू होगा. तो इसका जो करेक्ट पैर है वो है दैट इज़ BCA. यहाँ पे आंसर आपके लिए लिखा हुआ है BCA. वेरी सिंपल. चलो सेकेंड देखते हैं. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. अगेन सबसे पहले एक्सेप्ट होगा, डिपॉजिट रिसिप्ट मिलेगा, एंड उसके बाद में जाके पेमेंट मिलेगा इंटरेस्ट का. ओके, तो CBA इज द करेक्ट पैर. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स. तो डिपॉजिट क्या होता है, व्हाट इज डिपॉजिटर, व्हाट इज डिपॉजिट, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, व्हाट इज डिपॉजिट रिसिप्ट, व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, एंड व्हाट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. ये सारे के जितने भी टर्म्स कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया है आपको. मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में भी इसको एक्सप्लेन किया है. सो और बेसिक्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो इसको आप पॉज करके यू कैन राइट. ओके, तो आपका इसका आंसर आपको दिख जाएगा, तो पॉज करके आप लिख सकते हो इसको. ओके, सेकेंड है डिपॉजिट, इसको भी आप पॉज करके एक बार रीड करो, अच्छे से समझो इसको. कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, देन आई एम हियर फॉर यू, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ऑलराइट, चलो थर्ड देखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. 4 that is deposit receipt. Then 5 renewal of deposit, you can pause and you can take screenshot. 6 repayment of deposit. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. आंसर इन ब्रीफ में आपको दिया है. व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी borne in mind by the secretary while corresponding with depositors. सेकेंड है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द सेक्रेटरी मेक्स करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर. सो पार्ट 1 पार्ट 2, इसके लिए पार्ट 1 देखो, इसके लिए पार्ट 2 देखो, आपको इसका आंसर्स मिल जाएंगे. चलो जस्टिफाई के लिए भी सेम चीज़, यहाँ पे आपको पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 यहाँ पे देखना है, तो आपको इसका भी जस्टिफिकेशन का भी आंसर मिल जाएगा. पहला क्वेश्चन है आपका, द कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक सर्टन प्रिकॉशंस वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स. सेकेंड है देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ सेक्रेटरी हैज़ टू करस्पॉन्ड विद
डिपॉजिटर्स। ओके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखोगे तो उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यहाँ पे गलती से 4 है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वेरी सिंपल। चलो, पांचों लेटर्स है आपके। तो पहला लेटर है आपका ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द डिपॉजिटर्स ऑफ अ कंपनी। सेकेंड लेटर है ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर्स इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर्स regarding renewal of deposits. Then 5, draft a letter to depositor regarding repayment of his deposit. And last 5, that is draft a letter to depositor informing him about payment of interest electronically. तो ये पांचों इसके लिए मैंने रीड किया कि आपको याद आ जाए कि इसका लेटर का जो पार्ट है ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में। आप 1 बाय 1 सारे लेटर्स को समझ सकते हो, देख सकते हो। ओके, एंड आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टाइम इज़ वेरी लेस स्टूडेंट्स, सो नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। ओके, कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।